So in this lecture we shall be talking about the next theorem, that is Thevenin's theorem, and thereafter we'll talk about Norton's theorem, which is very similar to Thevenin's theorem, or it can be said that it's a dual of Thevenin's theorem. So Norton theorem is an alternate method of implementing Thevenin's theorem. So we'll learn in this theorem that how do we solve circuits using Thevenin's equivalent representation, and the reason for which we employ Thevenin's theorem in place of mesh and nodal analysis. So first of all, what does Thevenin's theorem state is that a linear network or circuit, so whenever I talk about network, which it simply means that we are talking about electrical circuits, so that a linear network can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source VTH in series with a resistor RTH. So we'll briefly discuss what VTH and RTH are, where VTH is the open circuit voltage called as Thevenin's voltage at the terminals, and RTH is the input or equivalent resistance, or called the Thevenin's resistance at those terminals. So for example, if we in this figure can see that there is a linear encapsulated term, linear two terminal circuit. So we have two terminals A and B from this circuit. So this is the network which is to be represented by Thevenin's equivalent, and then we have load connected to it. So this is a simple representation of circuit encapsulating it by a box. So what does this box, or what does this encapsulation means, is that it must be comprising of a circuit, a complicated circuit, or a circuit comprising of multiple sources or resistors. For example, one is shown here, or it could be more complicated circuit like multiple resistors and sources. So this box means that it must be comprising of inputs, voltage and current sources, and resistors. So all this complicated circuit can be replaced simply by one voltage source in series with a resistor, like this one. So we have one voltage source and a series resistor. So this part, so if I try to plot this, so what this encapsulation that we previously saw, this box which comprises of multiple sources as well as resistors, can be simply replaced by one voltage source and one series resistor, which is called, this voltage source is called as Thevenin's voltage source, and this series resistor is termed as Thevenin's equivalent resistance. So what we are trying to do is we are trying to replace this linear two terminal circuit or network by a voltage source which is called as Thevenin's voltage source in series with a resistor RTH, and we will be connecting the same load to this network. So this circuit comprising of a voltage source in series with RTH is termed as the Thevenin's equivalent circuit. So I guess this is clear. Are you able to get what I just explained? अच्छा, देखिए ये मैंने ये बताया कि ये जो आपके पास लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है, ये जो बॉक्स मैंने शो किया है, इस बॉक्स के अंदर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मल्टीपल रजिस्टर्स दे रखे हैं, एक सोर्स दे रखा है, तो आपके पास इस बॉक्स के अंदर मल्टीपल रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेज भी हो सकते हैं, वोल्टेज या करंट सोर्स. तो हम करते क्या हैं कि इसका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन हम निकालते हैं जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स होता है और एक सीरीज़ कनेक्टेड रजिस्टर होता है. तो इस वोल्टेज सोर्स को हम कहते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स, और इस रजिस्टर को कहते हैं थेवेनिन्स रेजिस्टेंस. तो हमने क्या किया, इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन शो किया. ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि we are interested to find the voltage across the load terminals or the current through it. तो इस resistor को once you obtain it, it's very easy to find the voltage across the load or current.
लेकिन इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं इसमें आपको नॉर्मली जो आप लोगों ने प्रीवियसली पढ़ रखा है तो नॉर्टन्स मैश एनालिसिस पढ़ रखा है, नोडल एनालिसिस पढ़ रखा है, तो ये एनालिसिस आप इसमें अप्लाई करेंगे और उससे फिर आप टर्मिनल वोल्टेज ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फाइंड करते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अगर मान लीजिए जैसे मिसाल के तौर पे आपके घरों में आप वेरिएबल लोड कनेक्ट करते हैं सॉकेट में, आपके पास घरों में सॉकेट है, सॉकेट में आपने एक लोड लगाया, फॉर एग्जांपल मोबाइल चार्जर लगाया, फिर नेक्स्ट मोमेंट किसी मोमेंट में आपने उसमें कनेक्ट किया एक यानी रूम हीटर, सर्दियों के ज़माने में आपने रूम हीटर कनेक्ट कर दिया, तो रूम हीटर का लोड बहुत ज़्यादा होगा मोबाइल चार्जर से, या कोई और मीडियम लोड आपने कनेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर। तो आप क्या कर रहे हैं, आपके पास ये साइड जो है घरों के जो सर्किट है, घरों का जो नेटवर्क आपके घरों में है, इस साइड में लोड साइड में आप लोड के रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं या लोड को वेरी कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आपके पास में इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैं जिसमें आप लोड को वेरी कर रहे हैं और आपका ये वाला जो सर्किट है लोड से पहले का वो चेंज नहीं हो रहा है, तो जब आप लोड को वेरी करेंगे तो करंट फाइंड करने के लिए, सो टू फाइंड द करंट through the load you will have to do the mesh analysis or nodal analysis again and again। तो जितनी बार भी आप लोड चेंज करेंगे उतनी बार आपको लोड मेश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये एक प्रॉब्लम है, अगर सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इन एनालिसिस को मेश और नोडल एनालिसिस को बार बार अप्लाई करना मुश्किल होता है। तो हम करते ये हैं कि हमारे पास क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स फिक्स्ड है और ये सारे रजिस्टर्स या जो भी कनेक्टेड फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस हैं ये सब फिक्स्ड हैं, तो हम नॉर्मली इस वाले पार्ट यानी इस वाले सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट से, जिसमें आपके पास में एक वोल्टेज सोर्स होता है विच इज़ कनेक्टेड टू एन इक्विवेलेंट वन रजिस्टर। तो हमने ये रिप्लेस करने के बाद इससे फ़ायदा ये होता है कि अब आप अगर आप लोड चेंज कर रहे हैं बार बार, आपने मोबाइल लोड लगा दिया या रेफ्रिजरेटर कनेक्ट किया है या फिर आपने हीटर कनेक्ट किया है, तो लोड वेरी करता रहेगा लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं, जिससे कि करंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वी डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल। अब आर एल चेंज होता रहेगा तो करंट चेंज होता रहेगा, लेकिन ये दोनों क्वान्टिटीज़ फिक्स्ड हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम का एक फ़ायदा ये है कि once you obtain the equivalent representation or the Thevenin's representation of the network, then for any load you can simply find the current by dividing the voltage by dividing voltage with the resistances. So now we shall be discussing about the steps to apply the Thevenin's theorem. Here I have written few steps that are involved in finding the Thevenin's in applying the Thevenin's theorem, one of which is to remove the load resistor through which current or voltage is desired. So if suppose that in the previous example, या एक example मैं consider कर लेता हूँ, let's say we have मान लीजिए आपके पास में ये एक सर्किट है जिसमें ये वाला पार्ट जो है ये लोड रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज या करंट निकालना है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, और ये रेजिस्टर है मान लीजिए R1 R2 R3, ये वोल्टेज सोर्स है। तो पहले आपको क्या करना है कि यू विल हैव टू फर्स्ट रिमूव द लोड रजिस्टर, जिसमें आपको करंट निकालना है या वोल्टेज निकालना है, उसको रिमूव कर दीजिए। ये टर्मिनल आपके पास मिल गया ए और बी। ठीक है, ये बात समझ आई सबके? अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है,
Find the equivalent resistance across the open terminals A, B after short circuiting the voltage source and open circuiting the current sources. This resistance is the Thevenin's resistance. तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपके पास जो टर्मिनल ओपन टर्मिनल्स हैं ए और बी, ये टर्मिनल्स आ गए, ठीक है, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. कैसे निकालना है? वही सेम मेथड जो आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में किया था. जितने भी वोल्टेज सोर्सेज सर्किट में होंगे उनको उसके इनफैक्ट यहाँ पे देखिए स्टार लिखा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल सोर्सेज. तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स इज़ ज़ीरो वाइल दैट ऑफ करंट सोर्स इज इन्फिनिटी. तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में अगर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से आप रिप्लेस करेंगे, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू शॉर्ट सर्किटिंग. ठीक है. Likewise for current sources, if you're going to replace the ideal current source by their internal resistance, is as good as replacing them by infinite resistance or open circuiting. तो अब इस सिंपल एग्जांपल में मैंने एक वोल्टेज सोर्स लिया है एंड देन वी आर गोइंग टू शॉर्ट सर्किट दिस वोल्टेज सोर्स. So this is short circuited and all the resistors which were internal to the circuit will be redrawn. ठीक है. तो R1, R2, R3 आपने बना लिया है. इस सर्किट को बनाने के बाद आपको क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस निकालना है. उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कहते हैं RTH या थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. बात समझ आ रही है? ठीक है. अब फॉर एग्जांपल ये क्योंकि बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने लिए, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में आ गए, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने निकाल लिया. उसके बाद इस रजिस्टर का इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का के साथ सीरीज़ कर दिया. तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन निकलने के बाद जो एक रजिस्टर बचेगा, यानी इन अदर वर्ड्स अगर आप इस सर्किट को फाइनली एक रजिस्टर से रिप्लेस कर लें, ठीक है, ये जो एक रजिस्टर आपके पास बचेगा रिड्यूस करने के बाद सर्किट को, इसको हम कहेंगे RTH. इज दैट क्लियर टू ऑल? इन दोनों स्टेप्स में किसी को डाउट तो नहीं है? पहला स्टेप क्या किया, जिस रजिस्टर में करंट निकालना है तो उस रजिस्टर से को आपने ओपन कर दिया, हटा दिया वहाँ से जिसमें आपको करंट निकालना है. दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, अब जो सर्किट यहाँ पे आपके पास बच रहा है इसमें जितने वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको शॉर्ट कर दिया और जो करंट सोर्सेज हैं उनको ओपन कर दिया. तो ये सर्किट आपके पास बचा. इस सर्किट में टर्मिनल ए और बी के बीच में आपको फाइनल एक रजिस्टर, यानी इन सब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को एक रजिस्टर से शो करना है बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी. तो ये जो एक रजिस्टर बचेगा, दिस इज कॉल्ड एज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और RTH. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या है, find the voltage appearing across the open terminals. This voltage is the Thevenin's voltage VTH. अब देखिए अब क्या करना है, ये जो उस सर्किट को जिसमें वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था या सोर्सेस लगे हुए थे, रीड्रॉ कर लीजिए. टर्मिनल ए ये है और बी है. ठीक है. अब आपको इसमें ये करना है कि ये टर्मिनल्स ए और बी के बीच में वोल्टेज फाइंड करना है. बात समझ आ रही है सबके? जो प्रीवियस केस में हमारे पास सर्किट था जिसमें सोर्सेस लगे हुए थे और हमने लोड रजिस्टर को हटा दिया था या उस रजिस्टर को हटा दिया था जिसमें से हमें करंट या वोल्टेज निकालना है. तो उस सर्किट में आपको टर्मिनल ए और बी के बीच में वोल्टेज फाइंड करना है. तो ये जो वोल्टेज आप फाइंड करेंगे, दिस विल बी V
ये भी clear। VTH अब इसको फाइंड कैसे करेंगे ये मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि ए और बी के बीच में, या इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर आपके पास में वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर है, तो उस वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर को आप एक टर्मिनल ए पे लगाइए, बी पे लगाइए और देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है। वो जो वोल्टेज आ रहा है वोल्ट मीटर पे, दैट इज़ थेवेनिन्स वोल्टेज। इसके बाद स्टेप ये है कि यू विल हैव टू ड्रॉ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क बिटवीन द टर्मिनल्स ए बी बाई कनेक्टिंग द वोल्टेज सोर्स वी टी एच इन सीरीज विद आर टी एच। तो वी टी एच और आर टी एच जो आपने निकाला है उन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए तो इक्विवेलेंट थेवेनिन्स नेटवर्क मिल जाएगा। यानी ये वी टी एच जो आपने निकाल लिया और आर टी एच प्रीवियस एग्जाम्पल में। तो इसके क्या करेंगे, वी टी एच कनेक्ट कर देंगे आप आर टी एच से। तो ये सर्किट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क या सर्किट। फाइनली जो लास्ट स्टेप है उसमें आप क्या करेंगे, यू विल हैव टू कनेक्ट बैक दी रेजिस्टर और लोड रिमूव्ड इन स्टेप 1। तो आर जो आपने पहले स्टेप में रिमूव किया था उसको वापस लगा दीजिए इसमें, आर या आर एल जो कुछ भी आपने रिमूव किया था फर्स्ट स्टेप में। तो ये सर्किट जो आपको मिलेगा दिस इज कॉल्ड एज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसमें जो करंट आपको फाइंड करना था तो सिंपल क्या हो जाएगा, करंट थ्रू दिस रेजिस्टर आर विल बी आई will be equal to VTH divided by RTH plus R। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके? जी ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, डाउट तो नहीं है किसी चीज़ में? हाँ ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें। So now suppose that we are given this circuit and we are required to find the current through RL for three different values using Thevenin's theorem। तो आपको इस सर्किट में थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करके करंट निकालना है आरएल से। तो इस सर्किट में देखिए आप सुपरपोजिशन थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस पढ़ चुके हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन अब आपको यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करना है और आरएल से आपको वो निकालना है, करंट निकालना है आरएल के थ्रू। तो उसके लिए फिर आपको यही करना पड़ेगा कि ये जो पार्ट है सर्किट का, ठीक है, टर्मिनल ए और बी से पहले इसको रिप्लेस कराना है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट से, जिसमें आपके पास में एक वोल्टेज सोर्स होगा वी टी एच विच विल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद आर टी एच। ठीक है, फिर इसको आर एल को आप कनेक्ट बैक कर देंगे, करंट निकाल लेंगे। तो अब पहले आप इसमें निकालेंगे, पहले सबसे पहले जी नहीं मैं समझा दे रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा, मैं इसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लोड रेजिस्टर को रिमूव करना है। ये जो लोड रेजिस्टर आ रहा है इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, और इसको रिमूव करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना। तो उसके लिए क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्सेज क्योंकि आइडियल है इसको शॉर्ट कर देंगे, करंट को ओपन कर देंगे। तो जो नेटवर्क आपके पास बचेगा वो इस तरह का होगा।
ये बात समझ में आई सबके? ये फर्स्ट 2 स्टेप्स इम्प्लीमेंट करा है तो उसके बाद ये सर्किट मिला। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? जी अब देखिए इसमें आपके पास में 4 ओम का जो, जी करंट को आप ओपन करते हैं क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। इनफाइनाइट इज एज गुड एज ओपन सर्किट, कोई करंट पास ही नहीं होगा यहाँ से। अब इस केस में आपके पास में 4 ओम रेजिस्टर इज गिवन इन पैरेलल टू 12 ओम। तो पहले आप कॉम्बिनेशन निकालेंगे 4 और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद सीरीज कर देंगे 1 ओम से, तो RTH निकालेंगे। सो RTH इज 4 इन पैरेलल विद 12 प्लस 1 ओम, क्योंकि 1 ओम सीरीज में है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप लोगों को सबको मालूम है। तो RTH आपके पास आ गया 4 ओम। ठीक है, क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें थेवेनिन्स वोल्टेज निकालेंगे, थर्ड स्टेप। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट सर्किट जिसमें आपने लोड रेजिस्टर को हटा दिया था उसको ड्रॉ कर लीजिए दोबारा से। अब इसमें आपके पास में देखिए, इसमें मैंने एज्यूम कर लिया है करंट I1 है और यहाँ पे I2। अब दूसरा देखिए, ये क्योंकि बुक में इस तरीके से इन्होंने क्लॉकवाइज I2 शो किया है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इस चीज़ को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको ये नोन है कि इस वाली ब्रांच में 2 एम्पियर करंट सोर्स कनेक्टेड है, और ये करंट सोर्स जो 2 एम्पियर जनरेट कर रहा है ये कहाँ पे जा रहा है, ये इस ब्रांच में जाएगा। यानी इसको मैं अगर पेन से शो करता हूँ आपको, तो ये 2 एम्पियर इस ब्रांच में जाएगा, और इस वाले को मैं डिस्कार्ड करता हूँ, यानी इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये जो आपके पास 2 एम्पियर करंट सोर्स है, इससे जो करंट आपके सर्किट में आ रहा है वो पूरा का पूरा इस ब्रांच में चला जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इस लूप में आपके पास करंट I1 है, यानी 4 जो 32 वोल्ट्स का सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, इससे करंट निकल रहा है I1, और इस ब्रांच से 2 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि 12 ओम की जो ब्रांच है इसमें जी जी पूछिए जी, एक मिनट, 2 एम्पियर्स वाला, एक मिनट अभी बता रहा हूँ क्यों नहीं जाएगा, इसको लिख लो मैं फिर बताता हूँ। तो ये करंट आपके पास में I1 प्लस 2 एम्पियर जी। जो लूप जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इस लूप में आप KVL अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 32 क्लॉकवाइज अगर आप मूव कर रहे हैं, रुकिए मेरा असल में पेन प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज आप मूव करेंगे माइनस से प्लस, देखिए ये माइनस है, माइनस से प्लस क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो 32 प्लस के। अब यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इस रजिस्टर में लेफ़्ट साइड में ये प्लस होगा, और राइट साइड में कितना होगा, माइनस। इसी तरह से 12 ओम्स का जो रजिस्टर है, इसमें जो पोटेंशियल आएगा उसमें क्या होगा, ऊपर तो प्लस होगा, इसमें यहाँ पे जो है यहाँ तो प्लस होगा और नीचे माइनस आएगा, सॉरी। ठीक है, करंट के डायरेक्शन से डिसाइड होगा आपका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर्स। ये KVL है, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, माइनस से प्लस गए प्लस 32, फिर इधर देखिए प्लस से माइनस गए -4, करंट कितना है इसमें, I1। अब देखिए थोड़ा सा जो, क्योंकि बुक ने इसको स्मॉल I1 लिया है, लेकिन मैं इसको कैपिटल I1 से शो करता, क्योंकि DC क्वांटिटीज़ हमेशा कैपिटल से शो की जाती है और AC क्वांटिटीज़ स्मॉल से शो की जाती है। तो बहरहाल ये है कि आप इसको ये मान सकते हैं कि हो सकता था यहाँ पे कहीं पे AC कनेक्टेड है, तो जनरलाइज करके उसको स्मॉल से शो कर दिया है।
-4 I1 मिल गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर कितना है? -12 I1 प्लस 2 एम्पियर्स। अच्छा ये विजिबल नहीं हो रहा है, नीचे लिख देता हूँ मैं इसे। -12 I1 प्लस 2 एम्पियर इज इक्वल टू 0। ये मैंने केवीएल अप्लाई किया है लेफ्ट मोस्ट लूप में। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल है, तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हैं I1। अच्छा जी जी एक मिनट क्लियर। आप लोगों ने केवीएल केसीएल सही से पढ़ा ही नहीं। एक मैं बताता हूँ, रुके। देखिए ये जो ब्रांच है इसमें 2 एम्पियर करंट आ रहा है ना, डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। ये करंट कहाँ जा रहा है? इस पर्टिकुलर नोड में, अगर इस नोड की बात करें तो इस नोड से करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि वह इस राइट की तरफ इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि टर्मिनल ए बी ओपन है, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा और ये सारा का सारा करंट इधर चले जाएगा। अब इस नोड की अगर बात करें, क्योंकि आप केसीएल अप्लाई करेंगे अगर इस नोड पे, करंट I1 आ रहा है लेफ़्ट साइड से, 2 एम्पियर आ रहा है राइट साइड से, तो केसीएल अप्लाई करने से क्या पता चलेगा? इस ब्रांच में करंट आ जाएगा I1 प्लस 2। नहीं, I1 32 वोल्ट से I1 आ रहा है, 4 ओम से पास हो रहा है I1। आप समझ में आ गया आपके? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? और केसीएल देखिए, केसीएल अप्लाई किया है इसमें, ये तो केवीएल अप्लाई किया है, ये वाली इक्वेशन जो है ये केवीएल से मिली है, और ये जो मिला है ये केसीएल है। तो यहाँ से आप इवेल्युएट कर ली इस इक्वेशन से, I1 कितना आ जाएगा? 32 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4 16। ठीक है, तो ये कितना आता है? 0.5 आ रहा है। चलिए 0.5। ठीक है, I1 आपने निकाल लिया 0.5। अब देखिए इसमें आपको VTH निकालना है। ठीक है, VTH निकालने के लिए मैं इन सबको रब कर दे रहा हूँ। VTH निकालने के लिए जी हाँ, 12 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको निकाल लीजिए। तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप मान लीजिए V0 या V डैश मान लेता हूँ उसे। इस पॉइंट पे V डैश है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट यानी इन दोनों, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आप मल्टीमीटर लगाएं या वोल्ट मीटर लगा रहे हैं तो आपको V डैश पोटेंशियल मिल रहा है। बात समझ आ रही है? और V डैश कितना है? V डैश है कितना? I1 आप, हाँ क्यों, हाँ देखिए V डैश आपने निकाला है, दिस इज I इंटू आर। आर कितना है? 0.5 प्लस 2, I1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 12, 30 वोल्ट्स। ठीक है, 30 वोल्ट्स आ रहा है अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर के। अब 1 ओम अगर आप इस पर्टिकुलर लूप में, यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेके इस लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा?
इसको आप प्लस मान लीजिए, प्लस आया है, प्लस मान नहीं लेंगे, प्लस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका करंट फ्लो इस तरह से था तो 12 ओम के ऊपर प्लस इधर आ रहा था, माइनस नीचे आ रहा था, तो पॉजिटिव पोटेंशियल 30 वोल्ट्स का यहाँ पे मिलेगा वी डैश विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ठीक है। यानी इस पॉइंट से अगर आप इस पॉइंट पे मूव करेंगे 30 वोल्ट्स आ रहा है। जी, बात सुना गई, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़, 1 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है इस 1 ओम रेजिस्टर? ज़ीरो। ज़ीरो करंट फ्लो करने का मतलब ये है कि वोल्टेज ड्रॉप कितना है, ज़ीरो। अगर आप KVL अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस पॉइंट से क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो प्लस वी डैश माइनस वी टी एच, यहाँ पे ज़ीरो ड्रॉप है 1 ओम में। इसका मतलब क्या हुआ कि वी टी एच इज इक्वल टू वी डैश, एक मिनट के ऊपर लिखता हूँ उसे, यहाँ पे लिख देता हूँ, वी टी एच कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी डैश, एंड वी डैश इज सिंपली 30 वोल्ट्स, तो वी टी एच आपका निकल के आ गया 30 वोल्ट। वी टी एच निकल आया, समझ में आ गया सबके? आर टी एच तो अब बताऊँगा, आर टी एच निकाल दिया मैंने, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या निकाल, अब देखिए, अब इसको रब कर दूं मैं, इसमें किसी को सवाल तो नहीं पूछना है? वी टी एच और आर टी एच आपने निकाल लिया, तो फाइनल स्टेप क्या है? जो रजिस्टर आपने रिमूव किया था स्टेप 1 में, क्या वैल्यू थी उसकी? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आर एल दिया हुआ है, आर एल की 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, करंट फाइंड करना है, करंट, ठीक है। आर एल दिया हुआ है, पहली वैल्यू आपको 6 ओम लेना है, दूसरी 16 लेना है, तीसरी 36 लेना है, और करंट बताना है तीनों केसेस में, ठीक है। कहाँ पहुँचे, यही एग्जाम्पल जी। तो हाँ, तो अब पहला हम 6 ओम कनेक्ट कर लेते हैं इसमें, पहला केस है 6 ओम। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, वी टी एच आपने कितना निकाला था, 30 वोल्ट्स, और आर टी एच कितना है, 4 पैरेलल, नहीं एक मिनट रुकिए, 4 ओम, ठीक है हाँ, आर टी एच हमने निकाला था 4 ओम, तो ये करंट आ गया 30 डिवाइड बाई 4, तो 7.5, नहीं जी, ओह सॉरी 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 सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, आर टी एच प्लस आर एल 3 एम्पियर्स, ये केस ए जिसमें आपने 6 ओम लिया है। दूसरा क्वेश्चन बाकी दो आप कर लीजिएगा, 6 ओम, दूसरे केस क्या है, 16 और 36, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। 16 के केस में आपको 6 की जगह पे 16 लिख दीजिएगा, तो 30/20 हो जाएगा, और थर्ड केस में 6 की जगह 36 कर दीजिएगा, तो 30/40 हो जाएगा भाई। हाँ, यही तो चेंज करना है बस जी। हाँ 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 ठीक है, जो भी है निकाल लीजिएगा आप लोग, निकाल लीजिएगा जो भी इसमें आ रहा है आपका, ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आप लोगों को खुद करनी है, और ये ट्यूटोरियल में आप लोग ले लीजिएगा इसको, लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं दूंगा, लेकिन अगर आप अभी आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए इसमें। अच्छा, ये तो वही प्रॉब्लम है, ये वाली है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द करंट आई, 1 ओम रजिस्टर से करंट निकालना है, आपके पास सोर्सेस कनेक्टेड है इस तरीके से। ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं,
तो हो सकता है आपके पास में 3 सोर्सेस की एग्जांपल है या 4 की है। जी जी पूछिए। अभी नहीं, बाद में कर लीजिएगा आप इसको। आप इसका इसका एक वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट या एक इसकी क्लिप वो ले लीजिए, आप फ़ोटो ले लीजिए, बाद में कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम। जी। So Norton's theorem, also called as the duality of Thevenin's theorem, and Norton's theorem states that a linear network or circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of current source IN series with a resistor RN, where IN is the short circuit current or Norton's current through the terminals, and RN is the input or equivalent resistance और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस एट दी टर्मिनल। देखिए, अगर आप लोगों को थेवेनिन्स समझ में आ गया है तो नॉर्टन्स बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसका भी प्रोसेस बिल्कुल थेवेनिन्स जैसा ही है, थोड़े से डिफरेंस आता है, वो मैं समझा देता हूँ क्या डिफरेंस है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ यू गिवन द सर्किट और नेटवर्क विद टू टर्मिनल्स ए एंड बी, दिस सर्किट एंड टर्मिनल कैन बी रिप्लेस्ड बाई a current source IN in parallel to RN. IN is called as the Norton's equivalent current and RN is the Norton's resistance. और सबसे अच्छी बात यह है कि Norton's resistance RN is same as that of RTH. So the process or the procedure that you learn to find RTH will be applicable to find RN. जिस तरह से RTH निकालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से RN आप निकालेंगे। Now the steps are that you will first have to remove the load resistor through which current or voltage is desired. तो जो क्वेश्चन आपको दिया होगा उसमें ये लिखा होगा कि करंट निकालना है या वोल्टेज निकालना है, तो जिस भी ब्रांच से आपको करंट निकालना है उस ब्रांच को आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, जैसे अपने उसमें किया था VTH थेवेनिन्स में किया था। तो इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ एग्जाम्पल से, आप क्योंकि बता चुका था पिछली थेवेनिन्स के केस में। Now next is to find the Norton's resistance RN similar to the way for Thevenin's resistance RTH. तो जैसे आपने RTH निकाला था इसमें वही सेम प्रोसेस होगा, तो RTH ही निकालेंगे यहाँ पे, लेकिन उसका नाम होगा RN, नॉट RTH। नॉर्टन्स में इसको RN कह देते हैं और थेवेनिन्स में इसको RTH कह देते हैं। थर्ड स्टेप इज टू शॉर्ट सर्किट द ब्रांच टर्मिनल AB थ्रू विच करंट इज डिजायर्ड। देखिए अब फ़र्क क्या आ गया, थेवेनिन्स में हम इसको ओपन कर रहे थे, यहाँ पे हम इसको शॉर्ट करेंगे। तो बेसिकली आपने क्या करा, इस सर्किट में अगर आप देखेंगे तो ये जो टर्मिनल AB है, इस AB को आप शॉर्ट कर देंगे, और शॉर्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, इस शॉर्टेड ब्रांच AB के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसको निकाल लेंगे, वो IN होगा। अब थेवेनिन्स में और इसमें फ़र्क क्या हुआ, थेवेनिन्स में आपने क्या किया था, जो ओपन टर्मिनल्स ए बी थे उसके अक्रॉस वोल्टेज निकाला था, उसको VTH कह दिया था। नॉर्टन्स में आप इन दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट करने के बाद जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है उसको IN कह रहे हैं। फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द टर्मिनल्स ए बी, दिस करंट इज द नॉर्टन्स करंट IN। ठीक है, तो सारे वो बेसिक लॉज KVL KCL मैश नोडल जो भी कुछ आपको आता है वो अप्लाई करके आपको IN निकालना होगा टर्मिनल ए, शॉर्टेड टर्मिनल AB से। उस करंट को हम कहते हैं नॉर्टन्स करंट। तो IN और RN निकालने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाएंगे कंटेनिंग IN इन पैरेलल विद RN एंड कनेक्ट बैक द लोड रेजिस्टर रिमूव्ड इन स्टेप 1। ठीक है, ये पैरेलल में होंगे और AB में आप वापस उस लोड को कनेक्ट कर देंगे जिसको आपने स्टेप 1 में हटाया था, फिर आप करंट डिवाइडर रूल से करंट निकाल लेंगे, सीरीज में थे। तो एक थ्योरम है, मालूम नहीं आपके कोर्स में है, मैं मालूम कर लूँगा, और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं उसमें। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ये थ्योरम भी आप निकाल सकते हैं। उसमें होता ये है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कि अगर एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है सीरीज़ में एक रेजिस्टर से, तो उसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके आप इक्विवेलेंट करंट सोर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि कनेक्टेड होगा एक पैरेलल रेजिस्टर से। बहरहाल उसे छोड़ दिए, वो भी पता नहीं इस कोर्स में या नहीं है। ये बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल मिस हो गई है, एग्जाम्पल बाद में करा देंगे। अब थोड़ी देर मैं यहाँ पे रहूँगा, आप में से किसी को अगर डाउट है तो वो पूछ ले मुझसे।
जी जी जी, यानी ये जो टर्मिनल ए बी है ना, ये टर्मिनल जो आ रहे हैं, इन दोनों टर्मिनल्स को आप नॉर्टन के केस में शॉर्ट करेंगे, कनेक्ट कर दीजिएगा इस तरह से शॉर्ट करके। इसका एग्जांपल मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बस बेसिक डिफरेंस ही याद रखिएगा। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हाँ उसमें, नहीं 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 नहीं, देखिए आर एल कहीं पे भी कनेक्ट हो सकता है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसमें आर एल आपका बीच में कहीं हो सकता है, तो उसको एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल वही ले लेंगे नॉर्टन्स, उसमें अप्लाई कर देंगे। जी जी हाँ, थेवेनिन्स में हमेशा ओपन रहेगा। जी नहीं नहीं, हमेशा नहीं होगा, क्योंकि जब आप आर एन निकालेंगे तो सेम प्रोसेस है जो आर टी एच निकालने का है, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ हाँ, जब आई, जी जब आई एन निकालना होगा तब आप शॉर्ट करेंगे टर्मिनल ए बी को।